Dear students, today we will discuss a very important mathematical tool which is widely used in physics, that is logarithm. So before I switch over to the definition of your logarithm, I'll just give very simple examples. So here is first, as you know that 2 raised to power 2 is equal to 4. So now look at this equality of the numbers. 2 is the base, which is raised to power 2, giving us 4. Let 3 raised to power 2, the square of 3, that is equal to 9. Isn't it? 3 is raised to power 2, that is giving you 9. Here 3 is the base and exponent is the 2. You may consider another example. 4 raised to power 2, that is 16. The base here is 4 and exponent is 2, that is giving us 16. Now in logarithm, your first example, look at your first example. 2 की क्या पावर होनी चाहिए ताकि हमें 4 मिले? So 2 is raised to power 2, that is giving us 4. What should be the power of 2? That should give us 4. So in logarithm, how it is written, कैसे लिखेंगे इसको logarithm में? Here is log 4 to the base 2. Base here is 2. जहाँ पे base आपका 2 है तो आपका base यहाँ पे लिखा जाएगा. So how it is read? So it is log 4 to the base 2, that is equal to, here is 2. Where should be, now see here, where should be the power of base, that is 2, giving us 4? That should be 2. Now your next example, here is log 9 to base 3. इसका मतलब 3 की क्या पावर होनी चाहिए जिसकी वैल्यू हमें 9 मिले? तो 3 की पावर हमें पता है 2 होनी चाहिए, तभी हमें मिलेगा. What should the power of 3 so as to have 9? तो कैसे लिखेंगे इसको लॉगरिथम में? log 9 to the base 3 giving us 2. Now considering next example, so here is log 16 to the base 4, it is equal to 2. What should be the power of your 4 so as to have your 16? That is 2. You can consider another example. Here is 2 raised to power 3, that is equal to 8. What should be the power of 2? That should result in 8. How it is written? आपकी 2 की क्या पावर होनी चाहिए जिसकी वैल्यू हमें 8 मिले? So log 8 to base 2, that should be equal to 3. इस तरह से लिखेंगे. You can consider another example. 2 raised to power 4, so it is equal to 16. आपकी 2 की पावर जो बेस 2 है, what should be its power so as to have 16? कितनी पावर होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए. तो यहाँ पे log आपका log 16 कितना हुआ? 4 हुआ to the base 2. तो यहाँ से बन गया आपके पास log 16 to the base 2, that is equal to 4. You can consider another example. That is 5 raised to power 3, that is equal to 125. Or it is what should be the power of your 5 so as to have 125? So log 125 to the base 5, that is equal to 3. 5 की क्या पावर होनी चाहिए? 5 का क्या एक्सपोनेंट होना चाहिए जिसकी वैल्यू 125 बनती हो? सो log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3. 5, ये जो बेस है, बेस की वो पावर कौन सी होनी चाहिए? और वो राइट हैंड साइड में आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं, सारी की सारी वैल्यूज़. यू कैन कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. सो हियर इज 25 square, that is equal to 625, isn't it? So
what should be the power of 25 so as to have 625? कैसे लिखेंगे इसको log में? Here is log 625 to the base 25, giving us here is 2. What should be the power of 25 so as to have 625? Now see next example. 10 raised to power 1 is equal to, here is equal to 10. How it is written? So log यहाँ पे log 10 to the base that is equal to 1. Log 10 to the base 10 that is equal to 1. Now consider another example. So 10 raised to power 2 that is equal to 100. What should be the power of 10 so as to have 100? In logarithm it can be written as log 100 to the base 10 that is equal to how much? It is 2. Now see another very important aspect, that is 10 raised to power 0. Anything raised to power 0 is always 1. How it is written? So log 1 to the base 10 is equal to 0. Isn't it? I'm just using the definition of your logarithm. So now you may consider another example. 1 upon 5 raised to power 2, it is equal to 1 upon 25. So it can be written in logarithm as log 1 upon 25 to the base 1 upon 5, it is equal to 2. Similarly we can write, so 10 raised to power minus 2 that is equal to how much? इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 raised to power minus 2, इसकी वैल्यू होगी 1 upon 100 यूँ करके. तो how it is written in logarithm? So log of 1 upon 100 to the base 10 is equal to minus 2. इस तरह से वैल्यूज चलेंगी. You can consider another example. So 10 raised to power minus n. So instead of minus n I am giving here some value. So here is let it is 3. So here is 3. 10 raised to power minus 3, it is equal to 1 upon 1000. So how it is written? So it is log 1 upon 1000 to the base 10. कितनी है? 10 की कितनी पावर होनी चाहिए ताकि हमें एक 1 upon 1000 मिले? That should be equal to minus 3. I think the concept of the definition of your logarithm is clear to you. So the definition is logarithm of a number with respect to a given base is the power to which the base must be raised to represent that number. कि किसी नंबर का जो आपका जो लॉगरिथम होगा, किसी पर्टिकुलर जो आपको बेस दिया होगा, उस बेस की क्या पावर होनी चाहिए ताकि हमें वो डिज़ायर्ड नंबर मिले, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे लॉगरिथम. What should be the power of a given number so as to have a particular number? जो पावर होगी किसी पर्टिकुलर नंबर को लेने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उस पावर को हम लॉगरिथम बोलेंगे. Now so here next करेंगे इसमें हम so standard formulae of logarithm. So standard so I am just erasing it. So now here standard formulae.
in logarithm. So your first formula is log m into n और a into b to the base, कोई भी बेस आप सेलेक्ट कर लो. So that is equal to log m to the base a plus log n to the base a. जैसे आपके बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स आपकी ऐड होती हैं, तो लॉगरिथम आपकी जनरली आपकी पावर्स हैं. तो log m into n to the base a, it is equal to log m to the base a plus log n to the base a. और अगर आपसे पूछें log a b क्या होगा, अगर यहाँ पे बेस कोई शो नहीं किया होगा तो ये अंडरस्टूड होगा कि आपका बेस 10 होगा. तो इसको कैसे लिखेंगे हम, log a plus log b. नाउ सी हियर. तो इस तरह से हम इसको पहला फार्मूला निकलता है, जो फर्स्ट फार्मूला. नाउ सेकंड फार्मूला इज द फार्मूला ऑफ योर quotient. So how it is written, log a upon b to the base, आपका बेस कोई भी ले लो, a कर रहा हूँ मैं, it is equal to how much, its value is log a minus log b. So इस तरह से आपका फार्मूला रहेगा. So your third formula is पावर फार्मूला. अगर आपके पास इस तरह से सिचुएशन हो, log a रेज टू पावर n टू द बेस स्मॉल a कर लो. So here is it is equal to, यहाँ पे स्मॉल a बेस कर लो, तो आपकी जो पावर है ये इसका मल्टीपल बन जाएगा. तो यहाँ से बन गया n log, here is capital A to the base a. इस तरह से this is called your the formula of your power. नेक्स्ट रहेगा बेस चेंज फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट. सो योर फोर्थ इज बेस चेंज फॉर्मूला. तो बेस चेंज फॉर्मूला में हम बेस कोई भी डिजायर्ड बेस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो कैसे किया जाएगा ये, नाउ सी हियर द प्रोसेस. आपके पास जैसे ये है log a है टू द बेस, मान लो स्मॉल a है, इसका बेस हमें चेंज करना है x या y या z. तो कैसे करेंगे, तो सीधे देखिए ज़रा, इसको लिखेंगे हम log, नया बेस इंट्रोड्यूस किया, और जिस नंबर का लॉगरिथम हमें निकालना है उसको ऐसा लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम log न्यू बेस बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, log a जो पुराना आपका बेस है उसके log से हम क्या करेंगे, नए बेस के साथ उसको डिवाइड कर देंगे. तो कहने का मतलब देखिए ज़रा, log a टू द बेस a, हमने बेस चेंज किया x, तो क्या बन जाएगा ये न्यूमरेटर में, log a टू द बेस x डिवाइडेड बाई log स्मॉल a जो पहले बेस था टू द बेस x. सो इसका मैं एग्जांपल एक और लिखता हूँ. मान लो आपके पास इस तरह से log हियर इज b है, इसका बेस आपका मान लो कोई भी बेस है 2 है, इस 2 को मैंने 10 में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में. तो हाउ इट इज़ डन, तो कैसे लिखेंगे इसको, log हियर इज log b, यहाँ पे जो बेस है नया बेस मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया. सो ओब्लिक log हियर इज log 2 जो पुराना बेस है, और विद नए बेस के साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से.
सो एक और नया बेस का कन्वर्शन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अगर आपके पास बेस ई हो, कोई भी यहाँ पे नंबर है ए है, log a टू द बेस e, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको मैंने 10 में कन्वर्ट करना है। देन हाउ इट इज़ डन, तो इसकी वैल्यू होगी log a टू द बेस 10, क्योंकि जो लॉग टेबल हमें मिलता है उसमें जो बेस होता है वो हमेशा आपका 10 होता है, इसीलिए मैं e को जो लॉग आपका जो लॉग है a है उसका बेस e है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बेस 10 में। तो कैसे होगा ये, इट इज़ लॉग आपके पास e और यहाँ पे 10। नाउ देखिए ज़रा, लॉग ई की आपका जो e होता है, द वैल्यू ऑफ e इज़ 2.718, isn't it? सो ये इसकी वैल्यू होती है, e इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e की वैल्यू देखिए ज़रा कैसे निकलती है, ये e रेज़ टू पावर x की जो एक्सपेंशन होती है, इट्स वैल्यू इज़ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह से ये एक्सपेंशन होती है। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं, इफ़ लेट x इज़ 1, तो यहाँ से बन जाएगा e रेज़ टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 1 एक्स क्यूब, एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से। और इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.718। अब देखिए ज़रा, जो जहाँ पे मैं कैलकुलेशन करने जा रहा था वहाँ पे इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो हियर इज लॉग a टू द बेस e, इट इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, इसको लिखा था मैंने log a टू द बेस 10 ओब्लिक log 2.718, isn't it? और यहाँ पे बेस रहेगा आपका 10। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है log 2.718, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, अगले टॉपिक में मैं इसको कवर करूँगा कि हाउ दिस वैल्यू इज टेकन। सो आपका जो 2.178 है, आपका डेसिमल से पहले एक डिजिट है, अगर एक डिजिट से हम एक घटा दें तो करेक्टरिस्टिक आएगी आपके पास 0। और जो लॉग टेबल है, लॉग टेबल में इस डेसिमल पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे और 27 को देखेंगे एक के नीचे, और 8 का जो डिफरेंस होगा उस वैल्यू को हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे लॉग टेबल ले रखा है, 27 को देखेंगे हम 1 के नीचे 8 का डिफरेंस। लेट अस हैव अ लुक एट लॉग टेबल। सो हियर इज अ लॉग टेबल। तो यहाँ पे 21 देखिए ज़रा, ये इज़ द लॉग टेबल, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ योर फर्स्ट कॉलम दैट इज़ नंबर, इट रन्स फ्रॉम 10 11 12 13 14 15 इस तरह से 49, देन वी हैव ये चलेगा आपके पास 99 के तक। तो आपके पास लॉग टेबल है, और यहाँ पे टॉप पे जो फर्स्ट रो है उसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 तक चलेगा। उसके बाद ये डिफरेंस वाला 1 2 3, ये डिफरेंस वाला कॉलम है 9 के बाद 1 2 3, फिर 4 5 6 इकट्ठा दे रखा है इनको 7 8 9। तो किसी भी नंबर का जब हमने लॉग टेबल में वैल्यू देखना हो तो कैसे देखेंगे उस नंबर को, जैसे हमारे पास प्रेजेंटली जो नंबर है वो है 2.718। मैंने कहा हम जो डेसिमल पॉइंट है उसको सबसे पहले इग्नोर करेंगे, इग्नोर किया तो आपके पास नंबर मिला 2718। तो पहले सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में 27 को लोकेट करेंगे। यहाँ पे आपका 27 है, तो 27 को मैंने लोकेट किया 1 के नीचे, द वैल्यू इज 4330, और आपका डिफरेंस रहेगा 8 का, मैंने इसको पहले ही हाईलाइट किया 12 और 13।
तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4330 में ऐड किया 13 तो ये बन गया 434343। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 72718 का जो लॉग की वैल्यू आई, जो इसका मेंटिसा बना एक्चुअली, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसकी वैल्यू बन गई 4343, isn't it? So this value becomes 4343. So now I'm going back to the topic. So now see here. So the value comes out to be, कितनी वैल्यू आई इसकी? So the value was यहाँ पे 4343, ये वैल्यू आई आपकी। 27 को देखा मैंने ए के नीचे, डिफरेंस रहा 8 का, जो 8 का जो डिफरेंस था उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी उसको ऐड किया। 27 को देखा 1 के नीचे, आपके पास वैल्यू आई थी 4330। 8 का डिफरेंस के कॉलम पे देखी मैंने वैल्यू, द वैल्यू वॉज 13 ऐड किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। जो फर्स्ट पार्ट है डेसिमल से पहले वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। सो नाउ अगर हम इसको डिवाइड करें 1 अपॉन, देखिए ज़रा 1 अपॉन 0.4343, इसको हम डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू आएगी जिसको मैंने सर्कल किया। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, सो 2, हियर इज 2.303। सो हियर इज लॉग, इस तरह से आपके पास वैल्यू रहेगी। तो कहने का मतलब है जब आपके पास बेस ई हो, उसको हमने कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना हो, तो उस केस में आपका जो मल्टीप्लायर होता है वो होता, आपके पास मल्टीप्लायर कितना रहता है 2.303। ये आपका मल्टीप्लायर होगा, आपका बेस सीधे ही कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट, इसके बाद अब लॉग टेबल क्या होता है। तो लॉग टेबल ये स्टैंडर्ड कॉमन लॉग टेबल्स होते हैं जो कैलकुलेशंस के लिए हमें अवेलेबल होते हैं। तो अगर किसी नंबर का आपने लॉग निकालना है तो यू हैव टू कीप जस्ट 2 थिंग्स इन माइंड। तो किसी नंबर का आपने लॉग निकालना है तो उसमें 2 चीज़ें होंगी। या फर्स्ट होगा आपके पास करेक्टरिस्टिक, और दूसरा होगा मेंटिसा। सो सेकंड होगा आपके पास मेंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैं इसको बिल्कुल क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट को। आपके पास जैसे कोई नंबर दे रखा है, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। आपके पास कोई वैल्यू है, कोई नंबर दे रखा है जिसका हमने लॉग निकालना है। मैं वैल्यू ले रहा हूँ बहुत सिंपल सी वैल्यू 1 2 3 4 5, isn't it? तो ये जो नंबर गिवन नंबर है, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2 3 4 5 डिजिट्स आर देयर। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा, CH लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की जगह शॉर्ट में। सो योर करेक्टरिस्टिक विल बी CH। कितना होगा इसका करेक्टरिस्टिक, यू आर हैविंग 5 डिजिट, 5 से घटा 1, सो आपका जो करेक्टरिस्टिक रहेगा वो रहेगा 4, isn't it? अब देखो ज़रा, अगर मैं आपका जो नंबर होगा, अगर उसकी वैल्यू 1 2 3 4 डेसिमल 5 है, अब डेसिमल से पहले हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, वी आर हैविंग 4 डिजिट्स। तो जितने भी डिजिट्स होंगे आपके जस्ट बिफोर योर डेसिमल पॉइंट, उनको काउंट करो, वहाँ से 1 घटा लो। तो यहाँ से करेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी आर हैविंग 4 डिजिट्स, 4 - 1, तो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 3, isn't it? अगर नंबर आपका थोड़ा सा मैं चेंज करूँ 1 2 3.45, अगर ऐसे हो तो डेसिमल से पहले देखो ज़रा, डेसिमल से पहले आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 3 है इस केस में। तो 3 से घटा 1 तो क्या आ गया, 3 - 1 = 2, isn't it? उसके बाद देखो ज़रा, आपके पास नंबर है 1 2,
Yeah, 12.345. How many digits are there just before your decimal point 2? तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? Its characteristic will be, here is 2 minus 1 is equal to 1. Now see here, अगर नंबर जो है आपका ग्रेटर देन 1 होगा उस केस में ये प्रोसीजर रहेगा. तो आपका लास्ट में 1.2345 है, तो आपका डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? एक है, एक से घटा एक 0. तो आपका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? ये होगा 1 minus 1 that is equal to 0. Isn't it? अब देखो जरा, अब इफ योर नंबर इज लेस देन 1 तो क्या हो गया यहाँ पे? सो इट इज 0.1235. इस केस में जो करेक्टरिस्टिक होगा उसका तरीका क्या होगा कि डेसिमल के बाद वी विल जस्ट काउंट द नंबर ऑफ जीरोस विच आर अपीयरिंग. जितनी जीरोस अपीयर हो रही हैं उनका नंबर देखो, उसमें एक ऐड कर दो, और इसका करेक्टरिस्टिक होगा विद साइन नेगेटिव, माइनस बाहर. सो नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. तो डेसिमल पॉइंट के यहाँ देखो जरा, नंबर ऑफ जीरो, कोई भी जीरो नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरो 0. अपनी तरफ से आप +1 करोगे. इस केस में नंबर जब ग्रेटर देन 1 होता है तो उसमें -1 किया था हमने. यहाँ इफ नंबर इज लेस देन 1 तो करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपके पास रहेगा नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ जीरोस अपीयरिंग जस्ट आफ्टर योर डेसिमल पॉइंट +1 हमेशा ही. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसको लिखेंगे -1, या इसको लिखा जाता है लॉगरिथम में 1 बार. अब देखिए जरा नेक्स्ट, आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो सकती है. डेसिमल यहाँ पे मैंने एक 0 इंट्रोड्यूस कर लिया. सो इन ऑर्डर टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर, अब देखो यहाँ पे आपका जो करेक्टरिस्टिक होगा डेसिमल पॉइंट के बाद देखो कितनी जीरो है? एक 0 है. तो माइनस ब्रैकेट के बाहर जितनी जीरोस हैं उसमें +1 करो, तो कितना हो गया? ये हो गया -2. कैसे लिखेंगे इसको हम? 2 बार. इजंट इट? तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपके पास डेसिमल 0 0 1 2 3 4 5. तो आपका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? CH विल बी माइनस हाउ मेनी जीरोस? 2 जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी जीरो हैं? 2 हैं. 2 + 1 किया, आपके पास वैल्यू कितनी आई? -3. कैसे लिखेंगे इसको हम? 3 बार. इजंट इट? लेट अस एक और कर लेते हैं हम यहाँ पे, एक और 0. तो अब ये प्रोसीजर फॉलो करें जस्ट. तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगा? जस्ट काउंट द नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. तो वैल्यू क्या हो गई? 3 जीरोस आर देयर +1, तो इट्स वैल्यू विल बी -4, और ये 4 बार. इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं. अब देखिए ज़रा, तो ये बन गया आपके पास, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ करेक्टरिस्टिक. तो करेक्टरिस्टिक क्या होती है? इफ़ योर नंबर इज़ ग्रेटर देन योर 1 तो नंबर ऑफ जो डिजिट्स होंगे जस्ट बिफोर डेसिमल पॉइंट उससे एक घटा दो, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे. तो आपके पास वैल्यूज 1 2 3 4 5 की वैल्यू देखो. 5 - 1 5 डिजिट थे, एक घटा 4 रहा. नेक्स्ट में आपकी 3 रही. फिर आपके पास 123.45 है. इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपके जस्ट बिफोर योर डेसिमल पॉइंट, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, उनका नंबर काउंट करो. तो इस तरह से एक एक घटता चलेगा. इफ़ योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 1. इफ़ योर नंबर इज़ लेस देन 1 तो उस केस में प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट रहेगा. उसमें आपका विद इन ब्रैकेट विद नेगेटिव साइन नंबर ऑफ जीरोस, उसमें हम +1 करेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट. इजंट इट? तो ये था आपका पहला पार्ट. अब बात करेंगे हम मैंटिसा की. तो मैंटिसा, एक चीज़ आप क्लियर करेंगे कि मैंटिसा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है. ठीक है. अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है. जैसे आपके पास कोई नंबर दे रखा जिसकी वैल्यू हमें लॉग टेबल से हमें रीड करनी है. जैसे आपके पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू हमें रीड करनी है. तो लॉग टेबल रीड करने के लिए आपको यू नीड कम से कम मैक्सिमम आपको 4 डिजिट चाहिए. 4 से कम होंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर 5 डिजिट दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं, तो फर्स्ट जो 4 डिजिट्स हैं उनको हम क्या करेंगे? उनको पिक कर लेंगे वहाँ से. जो रेस्ट के जो आपके डिजिट्स हैं उसको हम इग्नोर कर देंगे. तो यहाँ से मिला हमें
तो क्या 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 मिला ये 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। कितने डिजिट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5। तो करेक्टरिस्टिक कितना हो गया इसका? करेक्टरिस्टिक हो गया 5 - 1 दैट इज 4। 4 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि यू हैव टू पिक 4 डिजिट्स। 4 डिजिट लिया आप लोगों ने, तो 4 डिजिट में जो पांचवा डिजिट है, छठा है, सातवां है, उसको हम इग्नोर कर देंगे, निगलेक्ट करेंगे फॉर द टाइमिंग। उसके बाद लॉग टेबल में देखेंगे हम 12, जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा उसमें 12 को लोकेट करेंगे, सर्च करेंगे उसको 12 को। फिर जो पहली रो होगी उसमें जो 3 होगा, तो हॉरिजॉन्टल रो में 12, जो पहले कॉलम में जो आपको 12 मिलेगा उसको हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे हम, और टॉप में देखेंगे जब 3 होगा उसके नीचे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे। सो लेट अस हैव अ लुक। एक बार फिर से लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ पे हियर इज, तो 12 को देखेंगे हम, देखिए ज़रा। सो हियर ये आपके पास log table, let me check. So somewhere it has been misplaced. Recently we have used it. So तो आपने करना क्या है इसमें? So here is log, here is log. This value is running from your 50, but we need your first part of your log table. So let me check, somewhere it has been misplaced. So we can use, I have a copy of your logarithm, so there is no problem. So I can use, तो देखो ज़रा यहाँ से मैं प्रोसीजर बता लेता हूँ, यू कैन लोकेट इट। ये जैसे आपका पहला जो कॉलम है उसमें 12 देखेंगे हम, तो आई हैव ए लॉगरिथम, मैं यहाँ से वैल्यू पढ़ता चलूँगा। तो 12 को देखेंगे, ये फर्स्ट कॉलम है, 12 को देखेंगे हम 3 के नीचे। ये 1, ये 3 है, ये मान लो 12 है, तो उसको देखेंगे हम 3 के नीचे। तो यहाँ पे 12 को 3 के नीचे देखें तो आपके पास वैल्यू आएगी 0899। 0899 आपके पास वैल्यू होगी। So I am writing this value here. Then value is, आपके पास वैल्यू रहेगी 0899। और जो डिफरेंस का जो कॉलम है उसमें 4, हाँ आपका जो 4 के कॉरस्पॉन्डिंगली हम वैल्यू नोट करेंगे। योर डिफरेंस ऑफ 14 इज देयर, 14 का डिफरेंस है, इस 14 को हम इसमें ऐड कर देंगे। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, हियर इज वैल्यू। सो 9 4 13 11, यस दिस इज द वैल्यू। तो इस तरह से हम वैल्यू लिखेंगे। जैसे कोई वैल्यू है, आई हैव लॉग टेबल विच इज़ रनिंग फ्रॉम 50, तो इसका मैं कोई एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। सो जैसे आपके पास नंबर है, आपके पास नंबर है 5 1 2 3 4, ये वैल्यू, इसका हमने लॉग टेबल में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, हम इसमें देखेंगे करेक्टरिस्टिक पार्ट। तो करेक्टरिस्टिक पार्ट में हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इट मीन्स दैट दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स। 5 से घटा 1 तो कितना रहेगा करेक्टरिस्टिक, 4, इजंट इट। अब उसके बाद मैंने बोला मेंटिसा देखने के लिए हमें वी हैव टू कंसिडर फर्स्ट 4 डिजिट। फर्स्ट 4 डिजिट हम कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट 4 डिजिट हो गया आपके पास 5 1 2 3, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखेंगे हम 51 को। नाउ देखिए ज़रा 51 को देखेंगे, ये आपके पास 51 को देखेंगे, जो 2 का जो कॉलम है, फर्स्ट रो में जो 2 है उसके सामने वैल्यू देखेंगे 51 की, और 3 का डिफरेंस रहेगा। नाउ सी हियर
51 को देखा हमने 2 के नीचे, सो हियर इज द वैल्यू 51 को देखो 2 के नीचे, सो दिस वैल्यू इज 70, so this value is 7083, so this value is 7083. I'm writing this value here 7, so 7083. I think let me check this value. 51 को देखेंगे हम 2 के नीचे, so I'm taking at the same time the log table which is being there. So this value is 51 को देखेंगे 2 के नीचे, 51 under 2 it is 7093, it is 93 not 43, it is 93. Let me rectify it, here is 93. So a difference of 3. अब देखो डिफरेंस का कॉलम देखो जरा, 3 का डिफरेंस, सो दिस इज द वैल्यू, यस 93 है। सो 3 का डिफरेंस देखो ज़रा, यहाँ से चले गए हम, देखो ज़रा यूं करके, यहाँ से गए हम यूं करके, ये है 3 का डिफरेंस। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो ज़रा 3, इजंट इट? तो 3 के नीचे 3 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब 3 इसमें ऐड हो जाएगा। सो इसमें 3 ऐड कर लो तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 + 3 6, हियर इज, सो ये आपके पास वैल्यू होगी। सो now I'm writing this value here 7096, this the value। इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, in order to make your concept crystal clear। so let आपके पास कोई नंबर है, आपके पास नंबर है मान लो 71 है। हाँ, अब इसको देखिए ज़रा, यहाँ पे अगर नंबर आपके पास 71 है तो इस केस में कैसे वैल्यू निकालेंगे हम? सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देखेंगे। करेक्टरिस्टिक हाउ मेनी डिजिट्स आती है, 2 डिजिट्स, 2 - 1 तो CH हो गया इसका, CH इज़ 1, तो वैल्यू कैसे लिखेंगे? सो वैल्यू विल बी 1 पॉइंट, ठीक है, करेक्टरिस्टिक 1, फिर डेसिमल। 71 को देखेंगे हम 0 के नीचे, इस तरह के प्रोसेस, यहाँ पे 0 0 अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो 71 को देखेंगे 0 के नीचे और 0 का डिफरेंस रहेगा। तो देखिए ज़रा लॉग टेबल में 71 को देखिए 0 के नीचे, सो दिस इज़, ये 0 का कॉलम है इस तरह का, तो इसमें 0 के नीचे 8451, यहाँ पे 8451, दिस द वैल्यू 8451, 8451, सो 8451। so let me check this value again, so 71, here is 71, yes here is 71 को देखेंगे हम, 71 को देखेंगे, so 8513, yes this value, so 71 को देखा मैंने एक के नीचे, 8513, 8153, ओए 8513, 8513, सो यहाँ पे आएगा 8513, so here is the value is 8513। so this is the way, of course। तो इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। अगर एक ही डिजिट दिया हो, नो प्रॉब्लम। सो आई एम राइटिंग हियर, मान लो आपको डिजिट एक ही दिया है, उसका लॉग टेबल में वैल्यू निकालना है, उसका करेक्टरिस्टिक लिखो उसी तरह से। करेक्टरिस्टिक क्या होगा, एक डिजिट है 1 - 1, सो इट इज़ इक्वल टू 0, तो लिखा जाएगा 0 पॉइंट। अब यहाँ से अपनी तरफ से आप 0 इंट्रोड्यूस कर दो, 4 डिजिट का नंबर बना लो इसको। तो 30 को देखेंगे 0 के नीचे 0 का रहेगा डिफरेंस, तो देखिए ज़रा लॉग टेबल में 30 को देखो, सो दिस वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट हियर, सो आई कैन मॉडिफाई योर क्वेश्चन। सो 30 को देखें, आई हैव अ लॉग टेबल, मैं हार्ड कॉपी ऑफ योर लॉग टेबल, वहाँ से मैं वैल्यू नोट कर रहा हूँ। सो द वैल्यू इज़ 4771,
0.71 ये आपकी वैल्यू होगी, इज़न्ट इट। अब एक एग्जांपल मैं आपको ये ले रहा हूँ। मान लो आपके पास वैल्यू है 8, तो इसकी करेक्टरिस्टिक यूँ करके log 8 की वैल्यू हमें निकालनी है एक्चुअली। तो वैल्यू कैसे होगी, करेक्टरिस्टिक कितना हो गया इसका 1 - 1 दैट इज़ 0। अब देखेंगे इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम इसके बना देंगे, हम ये बना दिया मैंने। 80 को देखेंगे 0 के नीचे और 0 का डिफरेंस। तो 80 को देखो ज़रा 0 के नीचे, 80 को 0 के नीचे द वैल्यू इज़ 9031। सो तो यहाँ पे 9031, लेट मी चेक दिस वैल्यू। सो 81, हियर इज 80 को देखा आपने 9031, ऑफ कोर्स दिस द वैल्यू, इस वैल्यू को। तो इस तरह से हम लॉग टेबल को यूज़ करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। सो हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो हाउ टू use your log table or logarithm for making calculations. Your first question is, so your first question is solve करेंगे हम। solve, आपके पास वैल्यू है x equals 0.0076 raised to power 1/5, isn't it? सो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो देयरफॉर आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, हियर इज लॉग x इज इक्वल टू, अब जो हमने पहले फॉर्मूले किए थे, फॉर्मूला ऑफ पावर, तो जैसे लॉग लेंगे हम तो आपकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा आपके पास 0.0076 रेज टू पावर 1/5, इजंट इट। तो पावर आ जाएगी आगे, यूं करके आगे मल्टीपल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/5। हियर इज लॉग और यहाँ पे 0.0076। अब देखो ज़रा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 1/5 और यहाँ पे नाउ योर नंबर इज लेस देन 1, तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 1 2 जीरोज आर देयर, 2 से घटा 1, तो 2 से घटा 1 तो कितनी होगी वैल्यू इसकी, हाँ 2 है, नंबर ऑफ ज़ीरो 2 है, उसमें हमने 1 ऐड किया 3 हो गया, सो ये बन गया 3 बार करेक्टरिस्टिक पॉइंट। अब 76 को देखना हमने 0 के नीचे, 76 को अगर हम 0 के नीचे देखें, सो आई हैव अ लॉग टेबल, आप यहाँ से भी देख सकते हो। 76 को देखा, 76 को देखा आपने 0 के नीचे, तो हियर इज लॉग टेबल। 76 को देखा आपने 0 के नीचे, सो द वैल्यू इज 8808, 8808। सो आई एम राइटिंग दिस वैल्यू हियर 88, सो हियर इज 8808, दिस द वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, मेंटेसा जो है हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। अब कैसे इसको डिवाइड करना है, इसके लिए वी हैव अ प्रोसीजर। यहाँ पे हम ऊपर, यहाँ पे कोई नंबर हम ऐड करेंगे उतना ही हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो 5 का मल्टीपल बन जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1/5 किया मैंने, इसमें मैंने 2 ऐड किया और मैंने 2 घटा लिया। सो इस तरह से आपके पास क्या बन गया, तो ये बन गया आपके पास, ये बना आपके पास, इस तरह से लिखा मैंने इस नंबर को यूं करके, इज़न्ट इट। यहाँ हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, आपका जो आपका डेसिमल पार्ट है उसको सेपरेट कर लो। अब इन दोनों को कर लेंगे हम आपस में क्लब कर लेंगे, ये भी -3 है -2 है, ये बन जाएगा 5 बार। इसको हम सेपरेट कर लेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, इनको कनेक्ट कर लेंगे आपस में, तो आपके पास क्या बन जाएगा 1/5 और यहाँ पे बन गया 3 -2, सो ये बन गया आपके पास -5 को लिख सकते हैं हम 5 बार लॉगरिथम में। और यहाँ पे +2 है और ये डेसिमल पॉइंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये बन गया आपके पास, इसको क्लब कर दिया मैंने इसके साथ, ठीक है। सो तो इट कैन बी रिटन एज 2.8
808, ये इस तरह से। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए ज़रा, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड किया 5 बार को, तो इट इज़ सिंपली इक्वल टू 1 बार। और जो नेक्स्ट नंबर है 2.8808, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, देन वी हैव 5, हमें मिलेगा 0.57616, ये मिलेगा आपको। डिवाइड करके देख लो इसको, सो यू कैन मेक द कैलकुलेशंस। और उसके बाद इसको कैसे क्लब करेंगे दोबारा से, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 बार, क्योंकि नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव साइन ख़त्म करने के लिए सब कुछ किया हमने प्रोसीजर। तो ये बना आपके पास 1 बार 0.576, आप इसको 2 भी, इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो। ये डिजिट हमने राउंड ऑफ करना है, दिस डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये बन गया आपके पास 62। यस, इज यस। अब देखिए यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू निकालनी हमें, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, वी हैव log x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से x क्या होगा, वी हैव टू टेक द एंटी लॉग, तो ये आ गया log x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, इसका। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले 0.57 को देखेंगे, एंटी लॉग का टेबल भी मेरे पास है, उसी तरह से यूज़ करेंगे जैसे हमने एंटी लॉग। आपके पास 0.57, देखिए ज़रा, ये एंटी लॉग 0.57, ये आपका पास 0.57 है। उसको देखेंगे हम 6 के नीचे, हियर्स यूँ करके, ये 6 के नीचे यूँ करके दिस द वैल्यू, दिस द वैल्यू। तो आपके पास वैल्यू आएगी 3762, और डिफरेंस रहेगा 2 का डिफरेंस, देखिए ज़रा, डिफरेंस का कॉलम है, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो आपके पास बन गया ये 3769। So I'm writing this value here. So this value comes out to be, so it is 3769। ये वाला पार्ट है, ये इंश्योर करेगा अब यहाँ पे द पोजीशन ऑफ योर, ये पोजीशन शो करेगा किसकी, डेसिमल पॉइंट की। तो एक बार करेक्टरिस्टिक कब आता है, जब डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी ज़ीरो नहीं होता है। तो इस तरह से अगर ज़ीरो नहीं होता है तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो ये आई, देखिए ज़रा, दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ योर लॉग in order to make your calculations very simple. So तो इस तरह से we can make calculations. So now I'm considering another example. So your next question is solve. Here is जो सॉल्व करना, मैं उसको x मान के चल रहा हूँ, 1.792 इंटू 77.4 oblique, here is 129.7 raised to power 2/3। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, योर फर्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लिया हमने, तो ये क्या बन गया, log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ होल एक्सप्रेशन, इसको लिखा 1.792 इंटू 77.4 divided by, here is 129.7 raised to power 2/3, isn't it? Now अब हमने जो फॉर्मूले यूज़ किए हैं, द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द फॉर्मूला ऑफ क्वोशिएंट, फॉर्मूला ऑफ योर पावर, उन सभी को यूज़ करेंगे। देखो ये मल्टीपल है आपस में, ये और ये मल्टीपल ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो कैसे लिखा जाएगा इसको, सो आई एम राइटिंग हियर लॉग, ये बन गया आपके पास 1.792 प्लस, क्योंकि मल्टीपल है इसका, प्लस हो गया लॉग, हियर इज 77.4, इजंट इट। और यहाँ पे इसकी जो पावर है ऊपर गया तो -2/3 पावर हो गई, पावर को हम आगे ले आए तो ये बन गया -2/3, हियर इज लॉग, हियर इज 129.7। इस तरह से आपके पास वैल्यू
अब इसको सॉल्व करना काफ़ी सिंपल है। तो पहला पार्ट देखिए ज़रा, पहले पार्ट में सबसे पहले करेक्टरिस्टिक कितना होगा, डेसिमल से पहले आपका एक ही डिजिट है तो आपका करेक्टरिस्टिक रहेगा, आपका करेक्टरिस्टिक रहेगा 0। अब 17 को देखेंगे हम 19 के नीचे और 2 का डिफरेंस रहेगा। अगर हम वैल्यूज़ यूज़ करें लॉग टेबल में तो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, देखिए ज़रा। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.2534। देखिए ज़रा 17 को देखेंगे 9 के नीचे, तो 17 को देखा 9 के नीचे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2529, इजंट इट। और डिफरेंस है 2 का, 2 के डिफरेंस में 5 है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2534। यस इट इज़। सो आई हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ लॉग टेबल, सो आई एम लुकिंग दिस वैल्यू फ्रॉम हियर। प्लस नेक्स्ट देखिए ज़रा, आपका डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो इसका 2 से घटा 1 तो कितना रहा 1.77 को देखेंगे 4 के नीचे 0 का डिफरेंस। अगर आपका 4 डिजिट मिसिंग है तो आपका 0, आपका यहाँ तक ही लॉग टेबल चलेगा। तो 77 को देखो ज़रा 4 के नीचे, तो यहाँ इसको यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज वी हैव द वैल्यू। 77 को देखेंगे 4 के नीचे, ये 77 है, देखिए ज़रा 77 4 के नीचे, 77 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये है 888 ये बनी आपके पास वैल्यू। दिस द वैल्यू 888 सो दिस द वैल्यू। सो आई एम राइटिंग दिस वैल्यू हियर 888 ऑफ कोर्स 888 ये आई वैल्यू माइनस। अब देखो जरा नेक्स्ट, ये बन गया 2/3, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 3 डिजिट हैं जस्ट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसको क्या करेंगे हम, 12 को देखेंगे 9 के नीचे और 7 का डिफरेंस। अगर ये वैल्यू हम यूज़ करें सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1130। 12 को देखेंगे 9 के नीचे तो आपके पास वैल्यू आएगी, आई एम लुकिंग दिस वैल्यू हियर तो आपके पास वैल्यू होगी 12 को देखेंगे 3 के नीचे, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0899। यस, दिस वैल्यू इज समवट डिफरेंट। सो 12 को देखेंगे 9 के नीचे, 12 को देखेंगे 9 के नीचे ऑफ कोर्स। सो 12 को देखा 9 के नीचे, द वैल्यू इज 1106। यस 1106 और आपका डिफरेंस रहेगा 7 का डिफरेंस। 7 के डिफरेंस में आपकी वैल्यू होगी 24। यस 24 है तो 1106 में 24 ऐड किया तो ये बन गया 1130। यस द वैल्यू इज करेक्ट। सो अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करें सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे नंबर्स को करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.4087। बाकी वैल्यूज़ आपकी सेम रहेंगी, 0.2534 प्लस 1.00 1.88 माइनस रहेगा 1.4087। ये वैल्यू लिखी मैंने। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, अगर कैलकुलेट करें तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.7334। अगर हम इसका अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस द वैल्यू। सो अगर हम एंटी लॉग लें, दिस द वैल्यू ऑफ log x, so log x is equal to this the value। so तो log x is equal to this much, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर 0.7334। देखो ज़रा 0.73 को देखेंगे 3 के नीचे 4 का डिफरेंस, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, सो तो यू कैन लुक दिस वैल्यू, द वैल्यू इज, आप देखेंगे 73 को 0.73 को देखेंगे आप
3 के नीचे। तो देखिए ज़रा लॉग टेबल, 0.73 को देखा 3 के नीचे, तो आपके पास वैल्यू होगी 5408, 5408, और डिफरेंस रहेगा आपके पास जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस होगा। सो 4 के डिफरेंस पे आपकी वैल्यू है 5, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, 5 ऐड हो गया और सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी सो 0.73 को देखा 3 के नीचे, यस, सो द वैल्यू इज 5408। सो हियर इज द वैल्यू इज, तो आपके पास वैल्यू होगी 5 5 उसमें ऐड कर लिया, 8 और 5 13, सो ये वैल्यू बन गई आपके पास। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, जो आपका करेक्टरिस्टिक है वो है 0, इसका मतलब आपका जो डेसिमल पॉइंट होगा वो आपके एक डिजिट के बाद आएगा, तभी करेक्टरिस्टिक आपका 0 आएगा। सो दिस इज़ द वे हाउ टू मेक कैलकुलेशंस। सो देखिए ज़रा लॉग टेबल को यूज़ करके कितने 1-2 स्टेप्स में हमने इस वैल्यू को हमने एकदम से निकाल लिया। जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को यूज़ करोगे वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होती चलेंगी। नाउ आई एम टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स। So I need some more paper. So your question is, next question is solve. It is solve. अब मैं फटाफट करूँगा इन क्वेश्चंस को। सॉल्व x इज इक्वल टू 0.0036 रेज टू पावर 1/5। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग x इक्वल्स एकदम से यूज़ करेंगे 1/5, पावर आ गई आगे, सो हियर इज लॉग, हियर इज 0.0036, इजंट इट। अब इसको फटाफट कैलकुलेट करेंगे 1/5, सो डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे आ गया आपके पास है, सो 3 बार, और 36 को देखेंगे हम, 36 को देखेंगे ज़ीरो के नीचे, ज़ीरो के नीचे देखा तो आपके पास वैल्यू आएगी 533, हियर इज 5563, ये वैल्यू आपके पास आएगी, इजंट इट। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे, 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये इसको हम सेपरेट कर लेंगे पहले, ठीक है। आपका जो नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि मेंटिस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए, सो ये 5 हो गया, और यहाँ पे 3 बार मैंने लिख लिया, 3 बार से मैंने 2 घटा लिया, 2 ऐड कर लिया, और प्लस हो गया ये आपका ये वाला पार्ट 5563, 3 नेगेटिव और ये 2 नेगेटिव, 5 बार हो गया ये, सो 5 बार, और ये अगला हो गया 2 में ऐड कर लिया ये, तो आपके पास हो गया 2.5563। अब इसको डिवाइड कर लो, अगर हम डिवाइड करें 5 से, सो 5 बार मीन्स -5 को डिवाइड करो 5 से, -1 कैसे लिखेंगे, बार के फॉर्म में 1 बार, और ये इसको डिवाइड करो 2.5563, इसको डिवाइड किया मैंने 5 से, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 5112, isn't it? So this is the value. अब इसका एंटी लॉग लेंगे, दिस द वैल्यू ऑफ लॉग x, सो x की वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एंटी लॉग ऑफ 1 बार 5112। तो देखिए ज़रा मेंटिसा पे ध्यान रखेंगे एंटी लॉग लेने के लिए, तो फिर 0.51 को देखेंगे 1 के नीचे 2 का डिफरेंस, और दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये वैल्यू आएगी आपके पास 3, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3245, isn't it? तो एक बार कब आएगा आपके पास, जब आपका डेसिमल जो है आगे हो। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ कोर्स। सो आई नीड सम मोर पेजेस, सो आई एम यूजिंग, सो लेट मी take another question. So another question is, next question is, now आपके पास क्वेश्चन है
हियर इज 0.056 रेज टू पावर 2/3। इसको सॉल्व करना हमें, ऐसे बहुत मुश्किल है इसको सॉल्व करना, लेकिन लॉग को यूज़ करके एकदम से हम वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। सो लेट इट इज़ x इज इक्वल टू दिस वन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग x इक्वल्स पावर आ गई आगे, सो इट इज़ 2/3 और ये बन गया लॉग, और यहाँ पे 0.056 ये बना आपके पास पावर का फॉर्मूला यूज़ करके। उसके बाद देखिए ज़रा, ये बन गया 2/3। हाँ, यहाँ पे डेसिमल के पॉइंट एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है, तो यहाँ पे हो गया 2 बार। 56 को देखेंगे, ज़ीरो के नीचे ज़ीरो का डिफरेंस, तो आपके पास वैल्यू आएगी 7482, ये वैल्यू आएगी। अब मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए ज़रा, आपका जो 2 बार है इसको सेपरेट कर लेंगे हम, और इसको हम 3 की फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम इसको 3 से डिवाइड कर सकें। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, हियर इज़ 2/3, और ये किया मैंने 2 बार। इसमें मुझे 2 में एक ऐड करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी 3 बनेगा। तो यहाँ पे -1 + 1 कर लिया मैंने, और ये प्लस हो गया आपका डेसिमल जो पार्ट है आपका, यूँ करके। तो -2 -1 -3 हो गया। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2/3, ये बन गया 3 बार प्लस 1.7482। इस तरह से अब डिवाइड कर लो इसको पहले 3 से। अगर 3 से हम इसको डिवाइड करें, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, हियर इज 1 बार पॉइंट 1.7482 को डिवाइड करिए, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.5827। इसकी वैल्यू रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई करो ज़रा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2 बार प्लस 1 पॉइंट, आपके पास वैल्यू रहेगी 1654, ये वैल्यू आपके पास आएगी। अब इसके बाद देखिए ज़रा हाउ टू, तो यहाँ पे जो आपका ये पहले वाला जो पोर्शन है इसमें +1 है, और यहाँ पे ये -2 है, सो इट कैन बी रिटन एज, तो क्या बन गया ये बन गया आपके पास 1 बार पॉइंट 1654। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पे माइनस के 2 हैं, +1 है, ठीक है। तो इस तरह से नाउ, सो इट इज़ log x, तो x की वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो ये बनेगा 1 बार 1.1654। तो 0.16 को देखेंगे एंटी लॉग टेबल में, 0.16 को देखेंगे 5 के नीचे और 4 का डिफरेंस, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये वैल्यू आएगी आपके पास 1463। फिर एक बार है, एक बार करेक्टरिस्टिक कब आता है, जब डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी ज़ीरो ना हो। तो दिस द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। I need one more page. So your next question is solve. Here is x equals 10 raised to power 1/5. Taking log on both sides. First step, it is equal to -1/5 log of 10. Log of 10 is 1, isn't it? So here is -1/5, so ये बन गया आपके पास 1 के बराबर, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू माइनस ऑफ 0.20। नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव करना होगा, सो क्योंकि मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसमें +1 कर देंगे, -1 कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो हियर इज -1 + 1 माइनस ऑफ दिस वैल्यू 0.20। एक से घटा लो इसको, पॉजिटिव बन गया, देखो ज़रा ये -1 आया, इसको हम बार की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 बार पॉइंट, हियर इज़ 8, इजंट इट। सो अब देखिए ज़रा, ये है log x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एंटी लॉग ऑफ 1 बार पॉइंट 8। तो क्या वैल्यू होगी इसकी, यहाँ पे 80 को देखेंगे हम, 0 के नीचे, 0 का डिफरेंस, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 6310। 80 को देखेंगे, 80 को इसको इस तरह से बना लेंगे हम, 0.80 को देखेंगे, 0 के नीचे 0 का डिफरेंस एंटी लॉग टेबल में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास सीधी
6310। ये जो करेक्टरिस्टिक पार्ट है ये शो करेगा द पोजीशन ऑफ योर डेसिमल पॉइंट। एक बार आपका करेक्टरिस्टिक कब आता है? जब डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी ज़ीरो ना हो। सो दिस आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so I need one more page. So your next question is solve. आपके पास इस तरह की कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। Solve. Here is 0.5246 raised to power 1 by 8 minus 2.6055। इसमें इस पार्ट को कंसिडर करेंगे, फिर घटा लेंगे उसको। इसको लॉग को यूज़ करके हम यूज़ करेंगे फर्स्ट पार्ट को। तो लेट x इज इक्वल टू, ये कर लिया मैंने यूज़, 0.5246 रेज़ टू पावर 1 by 8, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग x इक्वल्स, पावर आ गई आगे, 1/8, 0.5246, इजंट इट? सो यहाँ पे लॉग आएगा साथ में, लॉग ऑफ यूँ करके। सो ये रहेगी आपके पास वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से इट इज़ इक्वल टू 1/8, इजंट इट? तो इसका करेक्टरिस्टिक देखिए ज़रा, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब 0 + 1 -1 बन गया। ये 1 बार लिखा। 52 को देखो 4 के नीचे 6 का डिफरेंस, और दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, सो द वैल्यू इज़, क्वेश्चन में जो वैल्यू है, लेट मी चेक द वैल्यू विच इज़ इन द क्वेश्चन। द वैल्यू इज़, यहाँ पे ज़ीरो भी है, यहाँ पे ज़ीरो भी है। तो ये ज़ीरो अगर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, सो आई एम मॉडिफाइंग दिस क्वेश्चन लिटिल बिट। सो यहाँ पे आपके पास 0.05246 क्रॉस चेक करने के लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, डेसिमल के पॉइंट 1 0 है, तो आपका यहाँ पे जो बार लिखा था मैंने पहले 1 बार था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बार। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 बार, और 52 को 4 के नीचे 6 का डिफरेंस, और इसकी वैल्यू होगी 7198। यू कैन मेक यूज़ ऑफ योर लॉग टेबल। तो उसके बाद देखिए ज़रा, 8 है, इसको 8 बनाने के लिए, 2 को 8 बनाने के लिए आई हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 6। तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये 1/8 विद इन ब्रैकेट, तो ये बन गया आपके पास 2 बार -6 + 6 किया, साथ में इस पार्ट को यूज़ कर लो, प्लस 0.7198, इजंट इट? तो ये कितना हो गया? ये 8 हो गया। सो नेगेटिव साइन के साथ, तो उसको मैंने 8 बार लिखा, प्लस इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये बन गया 6.7198। सो डिवाइड करिए इसको। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 बार प्लस, यस इट इज़, ये बन गया आपके पास, अगर हम इसको डिवाइड करें, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6.71। इसको हम डिवाइड करें, आई एम मेकिंग यूज़ ऑफ योर कैलकुलेटर, लेट मी मेक यूज़ ऑफ योर कैलकुलेटर, बिकॉज कैलकुलेशंस में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो हियर इज 6.7198, इसको डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई 8, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.8, हियर इज 0.8399। क्लब कर लो दोनों को, इट कैन बी रिटन एज 1 बार 0.8399। लॉग में ये फॉर्म चलती है आपके पास। तो x की वैल्यू क्या होगी? x इज एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, 1 बार 0.8399, इजंट इट? आप क्या करेंगे, इसको 0.83 को देखेंगे 9 के नीचे, 9 का डिफरेंस, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी आपके पास 6916, और ये इसका ये पोजीशन शो करेगा आपकी डेसिमल पॉइंट की। तो डेसिमल पॉइंट होना चाहिए कहाँ पे?
आपका एक बार करेक्टरिस्टिक कब आता है? जब डेसिमल पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं होती है। तो इस तरह ज़ीरो डेसिमल आ गया आपके पास। ये आ गई एक्स की वैल्यू जो हमने यूज़ किया था, ये एक्स की वैल्यू। इसमें से आप घटा लो अब जो क्वेश्चन था आपके पास। सो तो ये आपके पास क्वेश्चन था 0.05246 रेज टू पावर 1/8 माइनस 2.0055, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये इसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई 0.6916 माइनस 2.6055. So this value comes out to be minus 1.9139. I hope the concept is clear now to you. Let us have some more problems. So now your next problem is solve. Your question is solve. Here is 31.42 into 10 into here is 80.2 raised to power half upon 9.8 raised to power half. सो इसको x मान के चलेंगे हम, लेट इट इज़ x। तो फर्स्ट फॉर्म स्टेप क्या रहेगा? log x इक्वल्स फटाफट log ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? log ऑफ 31.42। मैं प्रॉपर्टी भी यूज़ कर रहा हूँ साथ में। सो दिस वैल्यू इज़ लाइक दिस। सो प्लस, हाँ ये जो आपका हाफ है ये आ जाएगा आगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? तो ये बन गया 1/2। हियर इज़ log ऑफ 80.2। आपका ये ऊपर जाएगा ये वाला पोर्शन, तो 9.8 की पावर हाफ है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके माइनस बन जाएगी। तो इट कैन बी रिटन एज -1/2 log ऑफ 9.8, द फर्स्ट स्टेप। अब इसका करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा लिखेंगे सभी का। सो log 31 के पास दो डिजिट्स हैं बिफोर डेसिमल पॉइंट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये बन जाएगी 2 - 1 1। 31 को देखेंगे 4 के नीचे 2 का डिफरेंस, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4972 प्लस 1/2 80.2 80 दो डिजिट हैं, 2 से घटा 1 तो 1 पॉइंट, करेक्टरिस्टिक आ गया 1। 80 को देखेंगे 2 के नीचे, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90, हियर इज 42, फिर माइनस 1/2, हाँ 9.8 है, 9 आपका डेसिमल से पहले एक आपका डेसिमल एक डिजिट है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0.98 को देखेंगे 0 के नीचे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 9912। इसको 2 से डिवाइड कर लो, इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, देयरफॉर आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी? 1.4972। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर हियर अगेन। So this value comes out to be 0.9521 minus 0.4956. Yes. If we make calculations, so this value comes out to be 1.9537 log of x. We need to calculate the value of x. x की वैल्यू क्या होगी? antilog of your this expression 1.9537। 0.95 को देखो एंटीलॉग टेबल में, 0.95 को देखो 3 के नीचे 7 का डिफरेंस, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 8989। हाँ डेसिमल आपका करेक्टरिस्टिक 1 है इसमें, तो ये एक कब आता है? जब डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हों। तो x की वैल्यू, दिस द वैल्यू ऑफ x। सो नाउ स्टूडेंट्स, I'm calculating antilog of some numbers, so I need just 1 or 2 more pages. So yes, it is. Find antilog of. Find antilog. Now the question is antilog of, here is
-2.6674 ये है आपका। इसका मतलब log x की वैल्यू दे रखी है, log x इज इक्वल टू -2.6674। तो इसको कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आपका जो मेंटिस है वो क्या होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको मैं -2.6 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बार, ठीक है, +3 -2.6674। देखो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए, आपका जो मेंटिस है दैट हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हियर इज 3 बार, 3 से घटाइए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +0.3326। ये इन दोनों को क्लब कर लो, इकट्ठा कर लो। अब 3 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद ये पॉजिटिव हो गया, आपका जो बार वाला पोर्शन है सेपरेट हो गया, तो ये बन गया 3 बार 0.3326। अब तो इजी हो गया, log x इज इक्वल टू दिस मच। तो x की वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग ऑफ, so here is 3 bar 0.3326, isn't it? so एंटीलॉग की टेबल में 0.33 को देखेंगे, 2 के नीचे 6 का डिफरेंस, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस वैल्यू कम्स आउट टू 2151। और ये करेक्टरिस्टिक पार्ट शो करेगा आपकी पोजीशन ऑफ योर डेसिमल पॉइंट। तो 3 बार कब आता है, जब डेसिमल पॉइंट के बाद आपकी 2 0 हों। सो दिस इज द सॉल्यूशन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो एंटीलॉग हमें निकालना है किसका, -3.01 का। तो इसका मतलब लॉग दे रखा है हमें, log x इज इक्वल टू दिस मच। दोबारा से इसको हमने प्लस करना है, तो ये -3.01 है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा ताकि ये प्लस हो जाए, हमें ऐड करना पड़ेगा +4, उतना ही घटा देंगे इससे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, हियर इज 4 बार +4 -3.01, isn't it? सो दिस बिकम्स 4 बार 0.99। तो ये बन गया log x इज इक्वल टू दिस मच। तो x की वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एंटी लॉग ऑफ 4 बार 0.99। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.99 को देखेंगे 0 के नीचे, आपके पास वैल्यू आएगी 9772। और ये 4 बार कब आता है, जब डेसिमल पॉइंट के बाद 3 0 हों। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। So here's the last question. So solve या calculate the antilog of निकालना हमने किसका, it is 0. So it is with negative sign of course, 34। अब तो आप समझ गए होंगे, पहले हमें जिसका एंटीलॉग निकालना होगा अगर वो नेगेटिव दिया है उसको हमने पॉजिटिव करना है एनी हाउ, उसमें कोई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमने ऐड करना है, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और वो पॉजिटिव जैसे ही होगा बार वाला पोर्शन आपका अलग हो जाएगा और दूसरे वाला पोर्शन आपका अलग से हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन, फाइंड एंटीलॉग ऑफ -0.3467। तो क्या करेंगे इसमें, देखो माइनस में है वैल्यू, इसमें आपका एक बार कर दिया मैंने, एक प्लस कर दिया, -0.3467 हो गया पॉजिटिव, इसको घटा लो दोनों को, तो क्या हो गया ये 1 बार। सो यहाँ पे रहेगा आपके पास प्लस, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 0.65, हियर इज 33, ये वैल्यू आएगी। सो तो यहाँ से इसको क्लब कर लो अब, 1 बार 0.6533 log x। तो x की वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.633533। सो here is 6533, yes it is। तो 0.65 को देखो 3 के नीचे 3 का डिफरेंस एंटी लॉग की टेबल में, क्योंकि एंटी लॉग है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4501। ये डिसाइड करेगा द पोजीशन ऑफ योर डेसिमल पॉइंट। एक बार कब आपका करेक्टरिस्टिक आता है, जब डेसिमल के पॉइंट
के बाद राइट साइड को कोई भी ज़ीरो ना हो. So this is the solution. So that's all, students. Thank you very much.